لیے رجعت میں ایک راز ہے سبقت حسین کی، رجعت میں ایک راز ہے سبقت حسین کی، اور مر جائے خلائق ہوئی ہے عرض کربلا، مر جائے خلائق ہوئی ہے عرض کربلا، دنیا کو کھینچ لائی ہے تربت حسین کی، دنیا کو کھینچ لائی ہے تربت حسین کی۔ اور یہ شعر بتانے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم موجود ہیں علم و ثقافت سینٹر میں، اور آج یہاں پر ایک کانفرنس منعقد کی گئی ہے، حسینیہ انٹرنیشنل کانفرنس بعنوان دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، زیر صدارت علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی اور جعفریہ آرگنائزیشن کی جانب سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس میں علامہ مولانا ذاکرہ تمام خطیب اس وقت اس میں موجود ہیں، اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو ہیں اس کی زیر صدارت فرما رہے ہیں۔ ہم بتا چلیں کہ آپ کو اس وقت اس کانفرنس میں باقر زیدی صاحب موجود ہیں، علامہ سجاد شبیر صاحب موجود ہیں، ذاکرہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ اور علامہ اطہر مشہدی، اور مختلف مذاہب سے رکھنے والے تعلق تمام عمائدین بھی موجود ہیں یہاں پر۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں علم و ثقافت آرگنائزیشن سینٹر میں، جہاں پر آج یہ حسینیہ انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آج کی اس کانفرنس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ پاکستان کی جانب سے علامہ اعجاز زیدی صاحب اور علامہ باقر زیدی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ فضا ملٹی میڈیا پاکستان، ان کو میں آج کی اس کانفرنس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدر جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان حسن صغیر آبدی، آج ہم نے ایک حسینیہ انٹرنیشنل کانفرنس جس کو بعنوان آج بھی دنیا کو ضرورت ہے حسین کی، اس حوالے سے ہم ایک انٹرنیشنل حسینیہ کانفرنس یہاں مرکز اسلامی میں منعقد کر رہے ہیں، اور جاری اور ساری ہے۔ اس کانفرنس کا اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں استحکام اور تمام مذاہب میں پیار و محبت، اخوت اور عزاداری سید الشہداء میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جس طرح ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اسے ختم کرنا، اس کی اپیل کرنا، اسے ختم کرنا، اور پاکستان میں عزاداری سید الشہداء کو کھلی فضا میں منعقد کیا جائے، کسی قسم کی رکاوٹ نہ کی جائے۔ اور ہم نے مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے اس کنونشن میں، اس کانفرنس میں، کہ وہ تمام وہ ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جاتے ہیں عزاداری کو کی راہ میں رکاوٹ، اسے ختم کیا جائے۔ بالخصوص جو بلا مقصد اور بلا کسی ثبوت کے FIR کاٹی جاتی ہے عالموں کی توہین کی ہے۔ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو پہلے دیکھا جائے کہ توہین ہوتی کیا ہے، اور اگر کہیں ایسا اول تو کوئی ہمارا ذاکر یا خطیب سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کے ممبر سے توہین کرے، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا مذہب نہ چھوڑو، نہ کسی کے مذہب کو چھیڑو، ٹھیک ہے نا، اپنا کام کیا جاؤ۔ اگر پھر بھی کہیں سے کوئی ایسی غلط بات کی جاتی ہے، کسی ذاکر نے خطیب نے غلط بات کی ہے، توہین کی ہے، تو بھائی ایک کمیٹی بنائے جس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں، ادھر کے بھی علماء، ادھر کے بھی علماء، وہاں اسے بلایا جائے، اس سے وضاحت لی جائے۔ اگر وہ وضاحت کر دیتا ہے اور سیٹسفائی کر دیتا ہے تو بات ختم، اور خدا نہ خواستہ پھر بھی نہیں کوئی ایسی بات ہوتی تو ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کا استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کو بلا وجہ FIR کاٹ لی جائے، اسے بند کر دیا جائے، اس کے پیچھے چھاپے پڑے۔ یہ بند ہونا چاہیے۔ اس
इसलिए कि इस मुल्क को इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं बल्कि अमन की ज़रूरत है और अमन और शांति की ज़रूरत है। मुल्क को आगे बढ़ना, खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी मज़ाहिब, किसी मसालिक से, किसी ज़बान से, किसी मज़हब से मुंसलिक हो, सबको हक़ है कि प्यार मोहब्बत और अखुवत के साथ इस मुल्क में रहें। और जब ये हाल होगा तो ये मुल्क इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमारा आगे बढ़ेगा। जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने इसी उसूल पे, चूँकि बस हुसैन एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जिसने सब्र के दर्स दिया, जिसने इनकलाब का दर्स दिया, जिसने बताया कि नमाज होती क्या, जिसने समझाया कि अल्लाह की इबादत होती की, तौहीद पे गुफ्तगू की, रिसालत पे गुफ्तगू की। और हुसैन ने इतना बड़ा काम करके दुनिया को, इस दुनिया से चले गए कि इतनी बड़ी कुर्बानी करबला में 61 हिजरी में दी और उस कुर्बानी का सिला है कि आज दुनिया के हर गोशे गोशे में एक नारा गूंजता है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी और हुसैनियत जिंदाबाद। ये पैगाम आज हम इस कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर के तमाम मुसलमानों को, बिलखुसूस मिल्लत जाफरिया, ये पेश कर रही है कि आइए हम सब मिलकर, अभी चंद दिन बाद माह मुहर्रम का आगाज़ होने वाला है, तो आइए हम सब मिलकर रसूलुल्लाह के नवासे की याद बनाएं, एक दूसरे से बगलगीर होकर, एक दूसरे के दोस्ती के साथ इंशाअल्लाह इसी तरह ये मुल्क चलेगा और आगे बढ़ेगा। हम सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तमाम मुसलमानों को। और ख़ास तौर पे इस वक्त मुझे याद आया कि पारा चनार में जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह पारा चनार में लश्कर कशी हो रही है, तो हुकूमत को खामोश नहीं रहना चाहिए। रियासती अदारे इसको देखें और उन तमाम बातिल क़ुव्वतों को रोके जो लश्कर कशी कर रही है और अल्लाह, रसूल और हुसैन के नाम लेने वालों पे कत्लेआम कर रही है। इस कत्लेआम से रोका जाए, मुजरिमों को, जालिमों को गिरफ्तार किया जाए, ये हमारा आज का मुतालबा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग शामिल हैं आप लोगों ने? जी, आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो हमने इस शहर कराची के जय्यद उलमाए कराम, बिलखुसूस फ़ख्र पाकिस्तान खतीब अहले बैत मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब आज की कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं, जो चंद लम्हे में यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा दीगर उलमा भी है, अल्लामा बाकर हुसैन जदी साहब हैं और हिंदू कम्युनिटी के भी यहाँ रहबर मौजूद हैं, ईसाई भी के रहबर मौजूद हैं और आपके देवबंदी फ़िरक़े के लोग मौजूद हैं। अभी तनामुल अख्तानी, अभी तनवीर अख्तानी साहब खिताब करके गए हैं। ये और भी दीगर उलमा कराम मौजूद हैं यहाँ पे और सब बारी बारी खिताब फरमाएंगे हम। और इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत अस्करी दिजानी साहब हैं, अल्लामा तरमशरी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस वक्त यूथ ज़्यादा है इसमें और ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और सच यही है कि उनकी मौजूदगी में मुझसे लबकुशाई नहीं हो पा रही है। बहरहाल उन्हीं से सीख रहे हैं हम। मैं जनाब अबरार हुसैन रिजवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज की इस कॉन्फ्रेंस से मुख्तसर खिताब फरमाएं। जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं इल्म सक़ाफ़त सेंटर में, जहाँ पर आज हुसैनिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मुनक़्क़िद की गई है, जहाँ पर उन्वान है इस कॉन्फ्रेंस का, दुनिया को आज फिर है ज़रूरत हुसैन की। इस मौज़ू पे मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन अपने राय दे रहे हैं, अपने खिताबात कर रहे हैं। हम इस वक्त अबरार साहब खिताब फरमा रहे हैं। ज़माने तालिब इल्मी में हमने बराह रास्त तालीम हासिल की। डॉक्टर सरवत अस्करी और डॉक्टर अली अब्बास जैदी साहब, बाकर जैदी भाई, अथर मशहदी साहब, जिनकी काविशों से आज का ये बज़्म सजाई गई है। जब मुझे ये कहकर बुलाया जाता है कि मैं बहुत बड़ा नाज़िम हूँ, तो मुझे इस बात पर न फ़ख्र होता है और न नाज़।
मुझे नाज और फ़ख्र उस वक्त होता है जब ज़फ़र अब्बास मौला अब्बास के हरम में अपनी जगह छोड़कर मुझे अपनी जगह बिठाते हैं और कहते हैं कि आज पाकिस्तान का हमारा नाज़िम अल्लाह यहाँ मौजूद है। तो इससे बड़ी ताईद कोई होती नहीं है। बाकी अलक़ाबात अपनी जगह है। बात है कि दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की। एक शेर से इसका आगाज़ सलमान करना चाहता हूँ, तुम्हें नज़र पड़ गई तुम। शहरक कटा के उसने अजब मौजज़ा किया, शहरक कटा के उसने अजब मौजज़ा किया, शहरक के जो करीब था उसको बचा लिया। जो बच गया है उसको खुदा कह रहे हैं लोग, जो बच गया है उसको खुदा कह रहे हैं लोग। जिसने खुदा बचाया उसे क्या कहेंगे लोग। बात यह है कि हुसैन का जिक्र हो, हुसैन के नाम पर कोई महफिल हो, कोई मजलिस हो, कोई इज्तिमा हो, कोई इजलास हो और वहाँ पर हुसैन के मानने वालों के अंदर जोश ना हो, वलवला ना हो, उनमें वो हिम्मत और वो ताकत ना हो जो यजीदियत के सामने खड़े होकर बबांगे दोहल ये कह सकें कि आज भी अगर इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस शहर में, इस शहर के किसी करिए में किसी एक आम इंसान के साथ भी अगर जुल्म होगा तो वहाँ पर एक हुसैन का मानने वाला खड़ा होकर उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ हुसैनियत बुलंद करे। ये मुमकिन ही नहीं है कि हुसैन का जिक्र हो, हुसैन का इजलास हो, हुसैन का जलसा हो, हुसैन की महफिल हो और वहाँ पर आप सच ना बोल सकें। ये जुर्म बड़ा जुर्म था जो मुझसे हुआ था, एक रोज़ तेरे शहर में सच बोल दिया था। मेरे शहर की सबसे बड़ी सच्चाई इस वक्त यह है कि हम अपने ही मुल्क में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदियों को अक़लियत कहते हैं। मेरे नज़दीक किसी भी कौम का, किसी भी मुआशरे की इससे बड़ी तनज़्ज़ुली नहीं हो सकती कि आप किसी भी इंसानी ग्रोह को उसके मजहबी अक़ीदे की वजह से अक़लियत करार दें। अक़लियत एक गाली का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि दे आर द पीपल ऑफ थर्ड ग्रेट पीपल, यानी कि हम उनको तीसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। मैं इस इजलास की वसातत से पाकिस्तान के आईन और कानून को मद्देनजर रखते हुए कायदे आज़म के अक़वाल को और कायदे आज़म की 14 अगस्त की तकरीर को सामने रखते हुए ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो सब बराबर के शहरी हैं। अगर ये इजलास, इस इजलास की सबसे अहम बात ये थी कि आज इन्होंने यहाँ से सिफासनामा पेश किया, उसके अंदर एक करारदाद का एक नुक्ता ये भी था और ये सबसे बड़ा नुक्ता है। इस नुक्ते को कभी भी रद्द नहीं करना चाहिए। और अगर आज का ये इजलास शियाने हैदर करार की जानिब से एक करारदाद की शक्ल में पेश किया जा रहा है तो ये इंसानियत की इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं है, पाकिस्तान की इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं है। हम आज भी वो अक़लियत हमें कह के पुकारा जाता है कि शिया एक अक़लियत है, शिया एक अक़लियत है और इस अक़लियत की बुनियाद पर पारा चनार हो, गिलगित हो, बिल्तिस्तान हो, हमारे इमाम बारगाह हो, शाहराह हो, हमारे सड़कें हों, गलियां हों, हमारा कत्लेआम सिर्फ इस बुनियाद पे किया जाता है कि हमारा से। लेकिन ना हुसैन का सर झुका था, ना हुसैन के मानने वालों का सर झुकेगा कभी। ये बात तय है कि कभी भी अगर ये कहा जाए कि दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की, तो दुनिया को आज भी नहीं, दुनिया को कल भी ज़रूरत हुसैन की थी, आज भी ज़रूरत हुसैन की है और कल भी ज़रूरत हुसैन की रहेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार जाफिया ऑर्गेनाइजेशन का, हसन सगीर भाई का
عسکری دیوجانی بھائی کا اور خاص طور پر علامہ اطہر مشہدی اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو یہاں پر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کجمج بیانی کے لیے یہاں بلایا اور بلا کر یہ عزت و توقیر دی۔ مولا ان سب کی توقیر میں اضافہ فرمائے اور اس ملک کو، اس وطن کو تمام فروحات سے، تمام تعصبات سے، شیعہ، سنی، دیوبندی، نقشبندی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس سے بالا تر ہو کر انسانیت کے عظیم تر درجے کے اوپر فائز ہو کر ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور اپنا خطاب پیش فرمائیں جناب علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی معزز ترین شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان قابل مبارکباد ہے کہ وہ شب و روز کی محنت کے بعد علامہ سجاد شبیر صاحب خطاب فرما رہے ہیں اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور یہاں تمام مسالک کے اور مذاہب کے معززین اور ملت کے دانشور علماء خطباء یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ امام حسین کی ضرورت دنیا کو جب تک یہ سیارہ موجود ہے، امام حسین کی ضرورت کے بغیر دنیا میں اشارہ کیا۔ قائم ٹی وی کو میری جانب سے السلام علیکم۔ اور جس طریقے سے آپ خدمت عزا اور خدمت بلا کرتے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے، دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حسین کی۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، دنیا کو صرف آج نہیں، دنیا کو کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ حسینیت کا ذکر ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ جعفریہ آرگنائزیشن نے جس انداز سے اس کو منعقد کیا، تمام مسالک، تمام مذاہب کے لوگوں کو یہاں بلا کر بین المسالک اور بین المذاہب اس تقریب میں تبدیل کر دیا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انسان اور سماج کو بہتر کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ہم سب کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا اور یقیناً آخری بات یہ کہ محرم کی آمد ہے اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں، محبتوں کو فروغ دیں، اور جب تک محبتوں کو فروغ نہیں دیا جائے گا تب تک ہم مقصد امام حسین سے، اس لیے کہ امام حسین نے ایک ایسی علمی یونیورسٹی بنائی تھی جہاں سے اخلاقیات کا آغاز ہوا تھا، ایک میدان جو جہاں امام حسین تشریف فرما ہوئے تھے، وہ 10 محرم تک تو کربلا تھا، مگر 10 محرم کی دن گزر کے جو شب آئی تو وہ کربلا معلیٰ ہو گیا۔ یہ امام حسین کا آفاقی کردار تھا۔ امام حسین نے دوستی کا پیمانہ بھی کربلا میں سکھایا، محبتوں کا پیغام بھی امام حسین نے کربلا میں سکھایا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم محبت کریں علم سے۔ یہ ہے جہالت موت ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا تب تک شعور کی کمی ہوگی، اور معاشرے بنتے ہی علم اور شعور سے ہیں۔ یہ بہت عمدہ کوشش ہے ہمارے
जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की, और काबिल कद्र हैं ये लोग। इन्होंने शब रोज़ मेहनत के बाद ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है, और मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे ये भी उम्मीद है कि यहाँ से जो आवाज़ गूंजेगी वो कहीं ना कहीं जाएगी, और यकीनन उसका कोई मुस्बत नतीजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये थे अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी, जो कि अभी आपके सामने खिताब पेश फरमा रहे थे। अब मैं जनाब मुफ्ती सलीमुल्लाह खान साहब तुर्क, जो कि मारूफ उस्ताद हैं दौरे हदीस के, जनाब मुफ्ती सलीमुल्लाह खान तुर्क देवबंदी मसलक से इनका ताल्लुक़ है, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आज अपना इस हुसैनिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएँ। मुफ्ती सलीमुल्लाह खान तुर्क साहब। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम साथी इखलास और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम साहिब सद मर्तबत बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हुसैनिया ऑर्गेनाइजेशन, जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक खूबसूरत गुलदस्ता कराची शहर और पूरी उम्मत के सामने पेश किया है। उम्मत में मोहब्बत और वहदत के लिए हमारी एक छोटी सी जमात मुत्तहिदा उलमा महाज के नाम से मिर्ज़ा क़िबला यूसुफ हुसैन साहब और हमारे अमीन अंसारी साहब, मौलाना अल्लामा अतहर मशहदी साहब, अभी जो मुझसे पहले खिताब फरमा गए सज्जाद रिजवी साहब, और जनाब डॉक्टर फिरोजुद्दीन रहमानी साहब, तकरीबन 16 साल से इस प्लेटफार्म पर हमारी जदोजहद जारी है। और कल परसों में भी इसी हवाले से, इसी उन्वान से एक प्रोग्राम उनका है। लेकिन उन सब में मेरी जो ज़ाती राय होती है वो ये है कि हम अमलन उलमा इस बात का इक़दाम करें कि जिस तरह अल्लाह का हुक्म है अन्नल मसाजिद लिल्लाहि, मस्जिदें अल्लाह का घर है, तो हम इनसे तमाम लेबल्स उतार दें और मस्जिदों के बाहर एक बाकायदा बोर्ड्स और एलानात लगवाएं कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है और इसमें तमाम मुसलमानों को सजदा करने का हक हासिल है। सुभान अल्लाह।
ये जितने भी हमारे इख्तिलाफात हैं, आबदी साहब ने कहा हमारे इख्तिलाफात फुरूई हैं, और फुरूई इख्तिलाफात अभी शायद 4 दिन पहले या 3 दिन पहले 5 दिन पहले अली कर्रार रहमहुल्लाह की बरसी में मैंने गुजारिश की थी, मशहदी साहब उस मजलिस में शरीक थे, कि इस्लाम एक आफाकी मजहब है। इस्लाम एक पूरी दुनिया पर फैला हुआ मजहब है। उसमें बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी सकाफतें हैं, बहुत मौसम हैं, बहुत कुछ इस्लाम के अंदर मौजूद है। जितनी इस्लाम की चादर बड़ी है, मैंने गुजारिश की थी कि उतने इस्लाम के अंदर इस चादर जितनी बड़ी होती है उसमें बखिए बड़े होते हैं और लंबे होते हैं, और जाहिर है जिस चादर में बखिए ज्यादा हो उसमें टुकड़े भी होते हैं। ये एक फितरी बात है। ये अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है कि कौन कहाँ हाथ बांधता है, कौन हाथ नहीं बांधता। ये अल्लाह के हबीब का अमल अल्लाह को पसंद है, इसलिए मुख्तलिफ मुसलमानों को मुख्तलिफ नबी करीम के अमाल को हवाले। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं के हिस्से हैं। इल्म सकाफत कॉन्फ्रेंस सेंटर में, जहाँ पर आज हुसैनिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई बाउनवान दुनिया को आज फिर है ज़रूरत हुसैन की, जिसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल हुए, और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मोमिनीन इस वक्त इस